Hello students. So today we are going to start the most important chapter of the whole syllabus of mathematics, which is time value of money. So why is this chapter the most important chapter of our syllabus? Because point number 1, this single chapter comes for 14 marks in the exams. Out of 40 marks of mathematics, this chapter comes for 14 marks. Second importance, the application of this chapter is seen throughout your studying career of chartered accountancy. Okay, so these 2 points make this chapter very important. Next thing, because of some technical glitch, you will not be able to see me. You'll only be able to see the screen. Okay, but please don't worry. If you face any problem, you know my number. I'm always there for help. And I hope that this lockdown soon gets unlocked, and whenever we meet, whatever your doubts are, if necessary, we can take this chapter again in the class. But that doesn't mean that you will leave this chapter now. It might happen that I may not take this chapter in the class also. So it is always good to study this chapter twice, because it is very important chapter. Actually, when we listen to things again and again, it sets in our brain. So that is why I'm saying there is no harm in studying this chapter 2 times. Okay, all the best, and I hope you enjoy this chapter. It is very important. I am breaking this into 2 or 3 number of videos, so that you can, I am breaking this into 2 to 3 classes, so that you can watch it again and again and benefit the maximum, take the benefit of it to the maximum. Thank you. Enjoy. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अप्रॉक्सीमेटली 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, और ये चैप्टर हमारे फ्यूचर सीए के, जो हमारा फ्यूचर है, जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, उसके लिए एक बेस तैयार करता है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहला पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट। लेट अस बिगिन। फर्स्ट, simple interest. As per its name, simple interest, it is very simple. What is the formula? Interest, simple interest. Interest is equals to principal into rate of interest into time in years by 100. बेटा फॉर्मूला कॉपी निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए। रेट आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या है? टाइम इन इयर्स। सो इफ द टाइम इज 6 months, टी क्या हो जाएगा? 6/12। इफ द टाइम इज 3 years, टी क्या हो जाएगा? 3। एंड व्हाट इज पी? पी इज द प्रिंसिपल। ठीक है, इसी के साथ आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आप आ जाइए पेज नंबर 4.4 पे। 4.4, एग्जाम्पल नंबर 1। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years? P इंटू आर इंटू टी, 2000 इंटू आर इंटू टी बाई 100। आ गया आंसर? ओके जी, डन। नेक्स्ट, सानिया डिपॉजिटेड 50,000 in a bank for 2 years. Principal 2 years with interest rate of 5.5% per annum. How much interest would she earn? Interest पूछ रहा है। Interest is equals to principal into rate into time by 100। कितना हुआ? फटाफट इस यस कैलकुलेट कीजिए। क्या आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है, 5,500। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 वो बोल रहा है इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी वो प्लस उस पे सिंपल इंटरेस्ट जो मिला था वो, विच इज इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस पी आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना पी आर टी बाई 100। इसमें से अगर हम पी कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? पी प्लस आर इंटू टी बाई 100। तो वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना था? 50,000
1 प्लस रेट कितना था 5.5%, टाइम कितना था 2 years बाय 100। बताइए जी। हाँ जी 55,500 रुपीज। ओके ओके। या फिर इसमें तो इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है सब कुछ, प्रिंसिपल हमें पता है, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों को ऐड कर दो। ओके ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अमाउंट का, फॉर्मूला नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 years, यानी कि प्रिंसिपल ये हो गया, टाइम ये हो गया, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ये आर हो गया। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, इंटरेस्ट निकल जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, 12,000। ठीक है नेक्स्ट, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट 1 लाख प्लस 12,000। ओके एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या पूछ रहा है आर, इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months, टाइम कितना है 6/12 इज 1050। 1050 कितना है अमाउंट, बोरोड अमाउंट भी 1000, ये कितना है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो देखिए प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे अगर तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1050 माइनस 1000 विच इज इक्वल्स टू 50। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमको क्या ढूंढना है आर, तो आर क्या हो जाएगा बच्चों 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई 6/12। ठीक है क्या होगा आंसर, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। क्या हो गया 10% पर एनम। ठीक है एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन पढ़ के नोट डाउन कर लेना क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला में पुट करना है और निकालना है। राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ 6.5%, सिंपल इंटरेस्ट बता दिया। ठीक है ही रिसीव्ड इतना, यानी कि इतना, ये क्या है अमाउंट हो गया, अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच, वो टाइम पूछ रहा है। सबसे पहले अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, डिफरेंस 15,925 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट आर इंटू टी जो हमको निकालना है बाई 100। तो टी कितना हो जाएगा 15,925 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70,000 डिवाइडेड बाई 6.5, 3.5 years। ठीक है बेटा जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो बैठ के सिर्फ स्क्रीन पे देखना नहीं है, कैलसी लेके कैलकुलेट करना है। बहुत जरूरी है कि कैलकुलेशन करो, इससे प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। और हमारे एग्जाम में हमारा 2 ही मोटिव है, कम टाइम में सही आंसर करना। ठीक है ओके नेक्स्ट, couple deposited some amount in a bank for 7.5 years T at the rate of 6% per annum, simple interest। couple received इतना, ये हो गया amount at the end of the term। compute initial deposit, principal पूछ रहा है। ठीक है अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी बाई 100। ये पूछ रहा है, बाकी सब चीजें दी हुई है। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस 6 इंटू 7.5 बाई 100। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ साथ शुरू करते हैं। कैलसी उठाइए, जैसे जैसे मैं कह रही हूं वैसा वैसा करते जाइए। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये वाला पोर्शन। चलिए 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है प्लस 1, ये वाला प्लस 1, ये वाला वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू हमारी आ गई है, कितना आया 1.45।
ये डिवीजन में जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय इक्वल टू इनटू ये वाली वैल्यू 101 500। आ गया आंसर, क्या है आंसर 70,000, 69,999.99 राउंड ऑफ करके 70,000। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, a sum of this much was lent out at simple interest, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 year 8 months, यानी 1 + 8/12 क्या हो गया, टाइम। ठीक है, क्या 8 / 12 + 1 1.67। टोटल अमाउंट वाज 50,000, इंटरेस्ट निकल जाएगा, 50,000 अमाउंट है और प्रिंसिपल इतना है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 50,000 माइनस 46, 50,000 माइनस 46 875। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3125 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट निकालना है, रेट इंटू टाइम बाय 100, रेट निकालना है, चलो निकालो, डिवाइडेड बाय 4 6875 डिवाइडेड बाय 1.99 4 years 3.99 sorry 4 years नहीं परसेंट 3.99 which is equals to 4%। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 9, व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल। सम ऑफ मनी ना लिख लो नोट्स कॉपी में, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल होता है। विल प्रोड्यूस इतना, ये क्या हो गया, अमाउंट एज एन इंटरेस्ट, ओके नहीं, विल प्रोड्यूस इतना एज एन इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months at 2.5% per annum, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल जो हमको निकालना है इंटू रेट जो दिया हुआ है 2.5 इंटू टाइम जो दिया हुआ है 3 year 3 months, तो 3 months कितना हो जाएगा, 0.25 years, 3.25 by 100। चलिए प्रिंसिपल को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं, 28,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 3.25। प्रिंसिपल कितना आ गया, 3,52,000। कैसे निकाला है हमने, जिन बच्चों को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा स्टेप वो ऐसे किया है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, ये प्रिंसिपल है, ये ऊपर चला जाएगा और ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 3.25। ठीक है जी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 10, in what time will 85,000 amount to rupees इतना at इतना % per annum। टाइम पूछ रहा है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + RT by 100। टी पूछ रहा है, टी के लिए अमाउंट बाय प्रिंसिपल -1 इंटू 100 by R इज इक्वल्स टू टी। इस फॉर्मूला से हमने ये ड्राइव कर लिया। चलिए निकालते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 157,675 डिवाइडेड बाय 85,000 -1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.5। टी कितना आ गया, 19, टी इज इक्वल्स टू 19 years। ओके, ठीक है। अब आइए कुछ शॉर्टकट्स बताना चाहती हूँ मैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ शॉर्टकट्स बताना चाहती हूँ, नोट करना शुरू कीजिए। पहला शॉर्टकट, इफ R is the rate of interest of simple interest, then amount doubles itself। अमाउंट डबल itself मतलब पहले P था
और उसको अगर हमने इन्वेस्ट किया तो अमाउंट कितना हो गया बाद में 2p, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2p माइनस p इज इक्वल्स टू p, ये अमाउंट हो गया। वो कह रहा है अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट का तो अमाउंट विल डबल इटसेल्फ इन 100 डिवाइडेड बाय आर ईयर्स। शॉर्टकट है, आपको पूछेगा क्वेश्चन में 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेल इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ 10,000 डबल इटसेल्फ। तो वैसे आप कैसे कर, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन टेल इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ 10,000 डबल इटसेल्फ। प्रिंसिपल है ये, मैं आपको कह रही हूँ डबल इटसेल्फ हो जाए यानी 20,000 हो जाए, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाए 10,000। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मैं आपको T पूछ रही हूँ, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू आर इज इक्वल्स टू टी। क्या हो गया, कितना आ गया T 100 बाई आर, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कब डबल होगा, सीधा 100 बाई आर ईयर्स में, जो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 100 बाई आर ईयर्स। ओके, हमेशा याद रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट, अमाउंट ट्रिपल इटसेल्फ, ट्रिपल इटसेल्फ, ट्रिपल इन हाउ मेनी ईयर्स, शॉर्टकट 200 बाई आर ईयर्स। ठीक है, अगर आर सिंपल इंटरेस्ट का रेट है तो कितने टाइम में अमाउंट अपने आप को ट्रिपल करेगा, 3 गुना करेगा, 200 बाई आर ईयर्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट, शॉर्टकट नंबर 3, ये सारे सिंपल इंटरेस्ट के शॉर्टकट्स चल रहे हैं अभी। हाँ, इफ amount deposited becomes A1 in T1 years, यानी अगर एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल का अमाउंट है P, जिनको कि अगर T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो A1 अमाउंट मिलेगा, एंड इट बिकम्स A2 इन T2 years, then amount deposited यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू A2T1 माइनस A1T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। शॉर्टकट, ठीक है। क्या शॉर्टकट, कि अगर एक अमाउंट है उसको T1 टाइम के लिए डिपॉजिट करेंगे तो अमाउंट A1 होगा, और T2 टाइम के लिए डिपॉजिट करेंगे तो अमाउंट A2 होगा, तो बताइए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, A2T1 माइनस A1T2 बाय T1 बाय T2। ठीक है, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ, फॉर्मूला भूल गए, तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी। ठीक है, हो गया ये शॉर्टकट। आइए नेक्स्ट शॉर्टकट, नेक्स्ट शॉर्टकट, if amount becomes, if अमाउंट मतलब सम ऑफ मनी, यहाँ पे सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल, if amount becomes n times in t years, then it will become m times in how many years,
it will become n times. In how many years? In m minus 1 divided by n minus 1 into t years. ठीक है, अगर n टाइम्स बनता है t years में, तो m टाइम्स कितना बनेगा? इतने years में, m minus 1 by n minus 1 into t. ओके, आइए वापस अब एक्सरसाइज में सम सॉल्व करना शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का. बहुत इजी है एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1 सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 PRT यूजिंग अ PRT विल बी व्हाट. ठीक है, नेक्स्ट 3 P दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, I दिया हुआ, पूछ रहा. ओके 4 प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा, कुछ नहीं डिफरेंस होगा. 5 प्रिंसिपल अमाउंट T रेट पर एनम पर. ठीक है. 6 प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, R दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स T पूछ रहा है. ठीक है. 7 प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, T पूछ रहा है, कोई बात नहीं. 8 सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 at 18% पर एनम. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरेस्ट पर एनम में दिया हुआ है और मंथली इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो पहले मंथली इंटरेस्ट को इंटू 12 करके ईयरली बना लेंगे और सम सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो अगर इंटू 12 करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 1 ईयर. सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, रेट पता चल गया, टाइम पता चल गया, प्रिंसिपल निकाल लेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 a sum of money amounts to rupees 6200 in 2 years, A1 in T1 years and A2 in T2 years, then the principal and rate of interest are. प्रिंसिपल पूछ रहा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा. हमने अभी देखा था ना फॉर्मूला, शॉर्टकट A2 T1 माइनस A1 T2 बाई T1 माइनस T2. ये तो क्या शॉर्टकट. मैंने कहा अगर शॉर्टकट ये फॉर्मूला ना याद रहे तो कैसे सॉल्व करना है. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. A1 कह रहा है T1 ईयर्स में, A2 कह रहा है T2 ईयर्स में. A1 कितना है? 6200 2 ईयर्स, 7400 3 ईयर्स. 6400 2 ईयर्स एंड 7400 3 ईयर्स. अमाउंट का फॉर्मूला क्या? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 2R बाई 100. आर टी है ना, आर यहाँ पे टी यहाँ पे फर्स्ट केस में 2 ईयर्स. ठीक है. सेकेंड 7400 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 3R बाई 100. ओके जी, ओके. अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, डिवाइड कर दीजिए. पी पी कैंसिल, सिर्फ आर बच गया, वेरिएबल आर बच गया. आर को सॉल्व कर दीजिए. ठीक है, आर को सॉल्व कर दिया, आर का वैल्यू आ गया, फिर पी का वैल्यू निकाल लीजिए. हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा. इसको कट करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा. और वैसे ये शॉर्टकट तरीका से ये क्या, प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला, पहले प्रिंसिपल निकल जाएगा फिर रेट निकाल लेंगे. ओके जी, ओके. आइए करके देखते हैं. A2 T1 माइनस A1 T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2. हाँ जी, क्या रहा आंसर? हाँ जी,
ये A1 6200 है, ठीक है, तो आ जाएगा -3800 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल, प्रिंसिपल आ गया 3800। ओके, प्रिंसिपल आ गया, यानी अगर 6200 अमाउंट का फॉर्मूला बैठाएं P1 प्लस P आ गया 3800, 1 प्लस R ढूंढना है, T इतना है बाई 100, तो R निकल जाएगा। R कैसे निकलेगा? 6200 डिवाइडेड बाई 3800 माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, R इज इक्वल्स टू 31.57%। 58 वैसे आ रहा है बट ऑप्शन के हिसाब से 57% है। ओके ओके, आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 10। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। हमने क्या शॉर्टकट पढ़ा था, कितना टाइम में डबल करेगा? 100 by r इज इक्वल्स टू 10, therefore r कितना हो जाएगा? 100 by 10 इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 10%, ठीक है। नंबर ऑफ years in which it would triple itself, अपने आप को ट्रिपल कितना टाइम में करेगा? 200 by r, 20 years में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यहीं तक, नेक्स्ट सेक्शन में लेकर आएंगे आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट। होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। प्लीज ध्यान से फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर बिल्कुल आ जाएगा, बहुत इजी है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा? पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन कर देगा टर्म सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।